Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm just gonna share the dark realities of hostels here in Latvia, okay, and the things that you should be mentally prepared for before coming here, okay. मैं पूरा का पूरा सच बोलूँगी इस वीडियो में, ठीक है. I don't care अगर आपको ये मोटिवेशन लगता है, डिमोटिवेशन लगता है, but these are some of the solutions that I'm giving to you from my experience, okay. Okay, so first of all, how to deal with messed up or disorganized roommates, okay. This is one of the biggest problem that you will actually face here, because see, everybody has this different mindset. Not everybody is that organized. Some people have this thing that they won't keep their things properly, and they have so much stuff that even it's hard for you to help. Even if you want to help, you can't. Like, there are so many things that you can consider as a solution while you are in such kind of situation. First of all, confront them. Tell them that you don't like this kind of disorganized behavior. First of all, confront them. If they don't understand, you can change the room. Third, you can go to the apartment if you don't want the long-term struggle like this, okay. Because see, depends, because disorganized people's psychology is like that ki most of them, they don't understand, they just run away from their responsibilities. This is the problem with disorganized people. They are just like these kind of people who don't want to change. So of course it's gonna be hard for you if you are an organized person, because you are this person who likes to decorate the room, who likes to keep the room on point, you know. Like, it's gonna be hard for you for sure अगर आप इस तरीके के एक environment से आते हो. क्योंकि इंडिया में हम लोग अपने घर को कैसे सजाते थे? We used to keep it nicely. We used to be nice, right, towards our home. So that's what I have in myself, and that's what I expect from others. This much at least I expect from others. So that's what I've been doing ever since I came here, okay. Whenever I felt that these people are not understanding me, I just switched out and changed the room and just adapted to the new environment, and that's it. But things will constantly change. You will constantly meet people and things won't be the same. So you can keep changing the room in the hostel as well. Nobody is telling you कि अगर आप second floor में हो तो second floor में ही रहो. You can go to 4th floor, you can go to 3rd floor. There are so many other floors which have been renovated recently, and you can just go stay there, no problem. This was the first most variety of solutions for this one problem, okay. The second problem that you will face here is loneliness. For example, you will have tons of friends, okay. You will have groups and people around you, and you will connect with them, and sometimes you won't. But the problem here is, जैसे हमारी इंडिया में फ्रेंडशिप्स होती थी ना, such loyal friendships, like you can really rely on such people, you know. I really had such kind of girlfriends back in India कि वाकई में I used to get help, and I just trusted them with a blind eye, like, you know, even if you blindfold me, I will trust them. It was that good and pure relationship. So here you won't get that, okay. Most of the people have different opinions in the back of their heads about you, and you will sense that, okay. So आप इतना खुलकर ओपन होकर उनसे नहीं कर पाओगे फ्रेंडशिप. यहाँ पर आप अपनी बाउंड्री सेट आपको करनी पड़ेगी. बहुत बार आपको ऐसा एक सिचुएशन देखने मिलेगा जहाँ आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे होगे, अपनी स्पेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होगे. सो या दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. और लोनलीनेस का आप ऐसा एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन मेरे से ये जान सकते हो कि सिट विथ योर सेल्फ. You don't need anybody, okay. Full time you don't need anybody. Sit with yourself, sit with your thoughts, sit with your emotions, feel it. This will make you way more stronger than those people who have these groupism tactics and who have all the time some kind of weird people around them. And okay, some people are good as well, but not many times you will get that much help, right? So sit with yourself, go out on your own and live for yourself. I hope you might be understanding what I am saying, okay. मैं जैसे अकेली निकल जाती थी घूमने के लिए. मैं नहीं वेट करती थी किसी लड़की का कि कोई लड़की मेरे साथ चल ले. मैं किसी लड़की का वेट नहीं करती थी कि कोई मेरे साथ लड़की चल ले यार साथ में, या फिर कोई मेरे साथ पूरे टाइम साथ में चल ले. मतलब मैंने जब ये फील भी किया ना कि यार अगला मुझे नहीं टाइम दे रहा है, सो आई वुड लीव देम बिहाइंड एंड आई वुड गो ऑल बाय माई सेल्फ. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट मी. लाइक ये चीज़ ना मैंने पंजाब में, क्योंकि मैं 1 साल अकेले रही थी, तो मैंने ये चीज़ काफ़ी पहले ही सीख ली थी कि भाई अगर मेरे साथ कोई बाहर जाने के लिए नहीं है, मैं तब भी निकल जाऊंगी. आई वोंट वेस्ट माई टाइम ऑन पीपल कि भाई वो लोग आ रहे नहीं आ रहे. आई वुड डू इट ऑल बाय माई सेल्फ. इट्स देयर लॉस इफ दे डिडंट कम अलोंग.
ठीक है। सो ये एक चीज़ अगर आप में है ना, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लोगे, एक आध चीज़ नहीं, हजारों चीज़ एक्सप्लोर कर लोगे आप इसी कंट्री के अंदर, ठीक है। और ये एक माइंडसेट आपका बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप एक यूरोप का स्टडी वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये आपका माइंडसेट अगर है तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, there will be times when you will be literally frustrated, okay, because you are not getting that much personal space, because you're not getting that much calm and peace in the room, because our rooms should be peaceful, okay, rooms should be peaceful. Most of the Indians have this tendency of putting songs, है ना, मतलब लाउड स्पीकर पे सॉन्ग्स चला देते हैं, and they don't understand that it might be the case that not everybody would like it. Manners actually, you know what people should feel in such kind of situations, they should feel like they should consider other people's feelings, ki whether they are liking it or not, and what the other person's mood is like, right? So all these things you have to consider, of course. सो इस तरीके से सारी कुछ चीज़ें आपके लिए सॉल्यूशन बन के आ सकती है इस तरीके की सिचुएशन में, वो भी हॉस्टल में, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल, बिकॉज मेरे साथ भी जो लोग हैं, बहुत लोग की लैंग्वेजेस अलग होती है, एंड मे बी आई वोंट लाइक द सॉन्ग्स दैट दे प्ले, एंड मे बी दे वोंट लाइक द सॉन्ग्स आई प्ले। सो मोस्टली आई डोंट प्ले सॉन्ग्स, आई हैव दीज ईयरफोन्स, गुड टू गो, है ना। आई डोंट हैव टू शो कि भाई मैंने गाने चला रखे हैं, ऐसा कुछ कर रखा है। इट विल बी लाइक सो ईजी फॉर मी कि भाई मैं अपना इस तरीके से स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई डू, मैं बाहर निकल जाती हूँ, ट्रैवल करने लग जाती हूँ, तो मेरे को ना इतनी चिढ़ नहीं होती मेरे अराउंड जो लोग हैं उनसे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग दैट यू कैन डू एक्चुअली। सो दीज वर सम ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई लर्न हियर इन हॉस्टल, ओके। बाकी देखो, सबसे ना उतनी बना के चलो जितनी ज़रूरत है यार। देखो, दीज पीपल आर टेम्पररी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग सब टेम्पररी हैं, इनने आपके साथ हमेशा नहीं रहना है, तो इनसे आप इतना ज़्यादा भी मत इन्वॉल्व हो जाओ कि कल को आप ही को लगे यार मैंने इतना किया, इनने कुछ नहीं किया, वो वाली फील आपके अंदर ना आ जाए, है ना। अभी जैसे आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सर्च फॉर सम अपार्टमेंट सो दैट आई कैन मूव अहेड एंड आई कैन एक्चुअली बी इन दैट एनवायरमेंट यार, वेयर आई मीट पीपल लाइक मी एंड आई कैन गेट मोर सॉल्यूशंस टू सॉल्व लाइक द इश्यूज ऑफ माई लाइफ। सो डू इट फॉर योर सेल्फ। कमाओ, पहले नौकरी ढूंढ लो, कमाना शुरू करो, निकलो यहाँ से। इधर रह के कुछ नहीं होना है, इधर कितना रहोगे, आपको अपने जैसे लोग नहीं मिल पाएंगे। वो जो हाई लेवल हाई वैल्यू लोग आप ढूंढना चाह रहे हो वो यहाँ आपको शायद ही मिल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लोग जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा एक अभी उस वाले जोन में ही है, मीडियम वाले जोन में। सो इफ़ यू वॉन्ट हाई वैल्यू पीपल यू हैव टू गो आउट फ्रॉम दिस हॉस्टल एंड ट्राई टू सर्च इट there. Apart from this, you can find some creative people here, so you can connect with them and be creative enough with them. यहाँ पे लेकिन वो बहुत ही कम ऐसे मैंने लोग देखे हैं, मैं बता रही हूँ, मैंने सारे फ्लोर घूम चुके हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जो वाकई में क्रिएटिव हैं, ठीक है। मतलब मेरे जैसे लोग ना मुझे काफ़ी लिमिटेड ही मिले हैं इस हॉस्टल में, मतलब जो अपने अपने में रहते हों, जो एक तरीके से जैसे अपने में मतलब क्रिएटिव कुछ उनका एस्पेक्ट हो, बोल्ड हो, है ना, उस तरीके के लोग मुझे बहुत कम मिले। और जब भी मिले ना मेरा मन बहुत खुश हुआ है उनके साथ बैठकर। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे काफ़ी लोग डिपेंडेंट माइंडसेट के भी है, तो यू सेलेक्ट योर पीपल अकॉर्डिंगली, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू सेलेक्ट योर पीपल अकॉर्डिंगली, है ना। नो, यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स विथ एवरीबडी, बी सेलेक्टिव so that you can grow as well. So these are some of the key points that I would tell you on how to deal with students in hostel if you are new. And if you like this video, do like, share, comment and subscribe, and I hope this video would help you a lot. It's not a demotivation guys, this is a part of life. If you are coming here, this is definitely gonna be a part of your life, and there are several problems that I'm gonna discuss right now. देखो, अलग अलग प्रवृत्ति के मैं ना अभी इस वीडियो में आप लोगों को स्टूडेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, अलग अलग प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स दैट वी हैव इन हॉस्टल, सो स्टे प्रोटेक्टेड। टॉक्सिक पीपल, इट कैन बी गर्ल्स, इट कैन बी गाइज, ओके, बोथ वेज इट गोज। Protect yourself from those kind of people. They can actually enter into your space and ruin your mental health. Second, narcissists. Definitely we have narcissists here. Third type of people, people pleasers. Fourth type of people, people who are
betrayers, literal betrayers and abusers. Okay, like सी अगर इस हॉस्टल में आ रहे हो ना, पैसों को लेकर कम ही डील करना लोगों से. नॉट एवरीबडी इज़ दैट मच ट्रस्टवर्दी, तो उस अकॉर्डिंग डील करना. और ज़्यादा कुछ भी लेनी देनी किसी से करना मत, वो सिचुएशन में ही अपने आप को मत डालना. सो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी वजह से मैंने यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिसेस कर देते हैं कि अरे मैं तेरे को नौकरी दिलवा दूंगा, अरे मैं तेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा दूंगा, तो मुझे पैसे दे दे. बहुत ही गंदा स्वभाव होता है इन तरीके के लोगों का. और उसके बाद वो बिट्रे कर देते हैं और उसके बाद पैसे नहीं देते, तो लोग फंस जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं इन सिचुएशंस में. So stop putting yourselves in such kind of situations where you are dependent on somebody else's mind. That's why I don't promote any agents on my channel just because of this sole reason. I don't know what's going to happen to you and your case. That's why ये जो कमेंट सेक्शन में रोते हुए स्माइली देके मेरे को बोलते हैं ना, मेरे को बता दो दीदी मैं क्या करूँ. यार मैं कहाँ से बताऊँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ. मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करने के लिए यहाँ पर हूँ. मैं पूरी यहाँ पर तुमको स्पून फीड करने के लिए नहीं बैठी हूँ. ठीक है, मेरे से जितना मेरे बस की होगी मैं बता दूँगी. फिर बाकी तुम्हारी खुद की मेहनत करो ना यार. कोई तुम्हें ला के तुम कोई बच्चा हो तुम कि तुम्हें कोई इंडिया से ला के यहाँ बिठा देगा ना. तुम्हें खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी. तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट. एंड इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग टू दोज पीपल लाइक जो ना पूरी स्पून फीडिंग चाहते हैं एक यूट्यूबर से. नो यूट्यूबर विल एवर प्रोवाइड यू दैट मच स्पून फीडिंग वाला सिचुएशन. दे विल ओनली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड देन रेस्ट यू हैव टू एक्ट अपॉन दैट. सो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, बी इंडिपेंडेंट मेंटली. क्या हो गया लड़कियों, मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाओ. इसीलिए रो रहे हो क्योंकि मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं हो. आई कैन सेंस दैट थ्रू योर कॉमेंट्स गर्ल्स कि मतलब तुम लोग कितने डिपेंडेंट हो सकते हो. सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन. मैं कैसे आई हूँ, खुद के दम पे आई हूँ. मैंने अपना 80% प्रोसेस खुद के बलबूते पे करा है और फिर मैं आई हूँ. मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आई हूँ. समझ रहे हो, मैं मतलब सच बता रही हूँ आप लोगों को. इसीलिए मेरा शायद वीज़ा सक्सेस भी इजीली हुआ, क्योंकि भाई मैंने सारा अपने बलबूते पे किया था. और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि येस आई डिड इट ऑन माई ओन. डू इट फॉर योर सेल्फ. इतने पढ़े लिखे हो के अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज टू योर ओन सोल यार. सीरियसली वर्क योर ब्रेन. लाइक यू नो, इफ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स ना, यू विल डू एनीथिंग फॉर इट. डू इट. हु यू वेटिंग फॉर? यू आर वेटिंग फॉर मी to get out of the screen and आजा बहन मैं तेरी मदद करूँ. Sorry dude, I will never be able to help you in that way. I help myself, you help yourself. I will guide you. Take the positive guidance, that's it. I am not a god that I would be able to do everything for you. Sorry, not a god. I'm just a YouTuber, so respect that. And again and again stop putting the same irritating pattern of comments. Okay, ऐसा कमेंट डालो जो मैं बोल भी सकूँ ना, उसमें तुम्हारी कुछ मदद भी कर सकूँ. प्रॉपर एक पर्टिकुलर तो डालो कि मतलब तुम जानना क्या चाह रहे हो. थोड़ा दिमाग लगा के अपने कमेंट किया करो, ठीक है, ताकि मैं उसका एक ही बार में तुम्हें सोल्यूशन दे पाऊँ. ये 4 प्रकार के एक ही में डाल देते हो, ऐसे लिख देते हो, फिर वो वही हो जाता है. रुक जाओ, एक चीज़ का सोल्यूशन मांगो. वेट फॉर थिंग्स. ओके, सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग थ्रू माई वीडियोज, एंड I hope this video helps you. Bye.